Hello everyone, I hope you all are fine. So today we have come up with one more new chapter that is sorting out materials. इसमें हम देखेंगे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती है, उनका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें. So before starting, don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. So yes, this is our next chapter that is sorting out materials and objects. Classification. We see a wide variety of objects around us. These objects have different shapes, size and colors. They are also made of different material. Some objects are made of paper while others are made of soil and mud. Some may be made of plastic while others are made of glass. Wood, metal, fiber, steel and leather are some more example of materials. हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें होती है. बेड, टेबल, चेयर, बेडशीट, टीवी, फ़ैन, एवरीथिंग. हर चीज़ अलग अलग चीज़ों से बनी होती है. सबका साइज़ अलग होता है, सबका कलर अलग होता है. ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, चेयर, टेबल, डोर एट्सेट्रा आर मेड ऑफ वुड. Book, duster, pencil box, etc. are rectangle in shape. In these examples, we have grouped the objects in the basis of materials they are made of and their shapes. हमने जब भी देखा चेयर, टेबल, डोर, हमने इसमें देखा, हमने कहा ये वुड के बने हैं तो हमने इसका मटेरियल देखा. और फिर हमने देखा बुक, डस्टर, पेंसिल बॉक्स, हमने कहा ये रेक्टेंगल शेप के है, इसमें हमने इनकी शेप देखी. The process of grouping things on the basis of some criteria is known as classification. ऐसे प्रोसेस में जिसमें हम सिमिलर सेम चीज़ों का ग्रुप अलग बना देते हैं उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. Let us now do an activity to understand grouping of objects more clearly. We can group different materials on the basis of the differences and similarities in their properties. All the things in the world can be broadly classified into two important categories. हम किसी भी चीज़ को कैसे मतलब क्लासिफिकेशन का कर सकते हैं, या तो उनमें कोई सेम बात हो या उनमें कोई अलग बात हो, है ना. अब हम दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं चीज़ों को. पहली है लिविंग थिंग्स, दूसरी है नॉन लिविंग थिंग्स. पहले हम देखते हैं लिविंग थिंग्स. The things which can grow and produce their own kind are called living things. All plants and animals are living things. ऐसी चीज़ें जो बढ़ सकती हैं हाइट में भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, और बेबीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं. जैसे प्लांट्स होते हैं, उनके सीड से एक और प्लांट ग्रो हो जाता है ना. तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे लिविंग थिंग्स में आते हैं. फिर आता है नॉन लिविंग थिंग्स. The things which cannot grow or reproduce are called non-living things. For example, stone, wood, fan, bulb, brick, book, pen, paper, etc. ऐसी चीज़ जो बढ़ नहीं सकती, बेबीज़ नहीं कर सकती, उसको हम कहते हैं non-living things. Non-living things can be broadly classified into two sub-categories. Non-living things को भी हम दो और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहला natural things, दूसरा man-made things. Natural things में होता है the things which are found in nature are called natural things. For example, water, air, milk and fruits. Natural things मतलब जो नेचर ने बनाई है, ह्यूमंस ने नहीं बनाई. ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो नेचर ने बनाई है, जैसे वाटर हो गया, एयर, मिल्क, है ना. और मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स. The things which are not found in nature but are manufactured by man are called man-made or artificial things. For example, plastic, glass and steel. Plastic हो गया, glass हो गया, steel हो गया, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं और इनको नेचर नहीं बनाते, इनको इंसान बनाते हैं. Objects are made of materials. Different objects around us are made of quite different materials. आप देखते हो जैसे बेड है वो वुड का बना होता है, बेडशीट है वो कपड़े की बनी होती है, जो हमारी नोटबुक्स हैं वो पेपर की बनी होती है. जितनी भी चीज़ हमारी आसपास हैं सब अपने अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं. थिंक ऑफ अ टेलीविज़न. इट्स आउटसाइड इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक. जैसे एक टीवी होता है, उसका बाहर का हिस्सा प्लास्टिक से बना होता है. वाइल द इनसाइड इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल वायर्स. जबकि उसका इनसाइड वाला अंदर का हिस्सा होता है वो वायर्स, उसमें तारें होती हैं और
वो ग्लास से बना होता है। तो जितना हमने अभी पढ़ा उसके बेसिस पे वी हैव टू क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया इज नोन एज डैश। किसी भी चीज़ को ग्रुप कर देना, एक साथ कर देना किसी क्राइटेरिया पे, या तो उनकी शेप सेम हो या कलर सेम हो या मटेरियल सेम हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द थिंग्स विच कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड डैश। ऐसी चीज़ें जो बढ़ नहीं सकती और बेबीज़ नहीं कर सकती, उनको क्या कहते हैं। Many objects are made up of same materials. There can be several objects that are made up of same material. For example, books, notebooks, newspaper, magazines, etc. are made of paper. ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनका मटेरियल सेम होता है, जैसे नोटबुक हो गई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब में ये सारी चीज़ें पेपर से बनी होती हैं, इनका मटेरियल सेम होता है। Similarly, many cooking vessels are made of metals. आप देखते हो कुकर, तवा, फ्राई पैन, ये सारी चीज़ें हमारी मेटल से बनी होती हैं, सेम मटेरियल से। नाउ वी विल लर्न अबाउट मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस कवर करती है, मतलब उसको रखने के लिए जगह चाहिए और उसमें कुछ वेट है, वो मैटर कहलाती है। अपने चारों तरफ सारी चीज़ें देखो, क्या क्या दिख रहा है। लाइट, कूलर, टीवी, बेड, चेयर, टेबल, फर्श, आप खुद, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें मैटर में आती है। एवरीथिंग, वेदर इट इज़ स्टार, प्लैनेट, रॉक, वुड और प्लास्टिक, everything is made up of matter. Matter consists of small particles called molecule. Matter छोटे छोटे particles से बना होता है जिसको हम कहते हैं molecules. Molecules of one kind of material are similar but are different from molecules of other kind of material. अब जैसे हमारे पास एक बुक है और हमारे पास एक टेबल है, जो बुक भी मैटर है, टेबल भी मैटर है ना, उनका वेट भी है और उनको रखने के लिए जगह भी चाहिए, स्पेस भी कवर करती है। तो जो हमारे बुक के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग होंगे और जो हमारे टेबल के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग होंगे। ओके, मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर सेम बट आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड एंड ऑक्सीजन, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, you know, I think you know now that same thing can be made of more than one material, है ना। कोई भी एक चीज़ एक से ज़्यादा मटेरियल की बन सकती है। जैसे अभी हमने टीवी के बारे में पढ़ा, बाहर से प्लास्टिक होता है, अंदर ग्लास होता है, वायर्स होती है, कितने सारे मटेरियल यूज्ड हैं, है ना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर। टम्बलर होते हैं जिसमें हम पानी भरते हैं या कोई भी लिक्विड चीज़ डालते हैं। आपने कभी सोचा है हम उसे पानी या कपड़े से क्यों नहीं बनाते, हम उसे प्लास्टिक, स्टील, ग्लास से ही क्यों बनाते हैं। सबको ही पता होगा, क्योंकि अगर हम पानी को पेपर या क्लॉथ में डालेंगे तो पेपर क्लॉथ गीला हो जाएगा, है ना। दिस इज़ बिकॉज वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप लिक्विड। अ टम्बलर मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर कैन नॉट बी यूज टू कीप वाटर. So a tumbler is made with a material which has the property to hold liquid. तो हम टम्बलर को ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिस मटेरियल के पास लिक्विड को होल्ड करने की प्रॉपर्टी हो. Therefore, the use of a material depend on its properties and the purpose for which it is to be used. इसलिए हम जितना कोई भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो किस बेसिस पे बना होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे और उसका कहाँ कहाँ यूज़ होगा उसके बेसिस पे. We choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. Appearance मतलब कोई भी चीज़ दिखती कैसी है. Objects around us look very different from each other. हमारे आसपास जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं. This is because the nature of material from which they are made are differ from each other. ये क्यों होता है? अगर आप एक टेबल और एक नोटबुक देखो, उनके मटेरियल एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, इसलिए वो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, है ना. रबर अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड. जो इरेजर होती है, रबर होती है, वो बहुत डिफरेंट दिखती है वुड से. कॉपर अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिल्वर और गोल्ड. कॉपर
वो भी बहुत अलग दिखता है सिल्वर और गोल्ड से, है ना। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, metals like copper, iron, silver, gold and aluminium have common property that they all shine. पर आपको पता है जितने भी metals होते हैं, गोल्डन, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, इनके पास एक सिमिलर प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है ये चमकते हैं, शाइन, है ना। सिमिलरली वुड और रबर हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे डू नॉट शाइन। और लकड़ी और रबड़ को देखें, उनके पास भी एक सिमिलर प्रॉपर्टी है, क्या है कि वो शाइन नहीं करते। अ मटेरियल कैन बी लस्ट्रस, हार्ड, स्मूथ और रफ इन अपीयरेंस। लस्ट्रस मतलब होता है चमकीला, हार्ड आप सबको पता है मजबूत, स्मूथ या रफ कुछ भी हो सकता है कोई भी मटेरियल। लेट अस स्टडी दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स वन बाय वन। Before proceeding further, let us do these two questions. The third question is, anything which occupies space and has weight is called dash. कोई भी चीज़ जिसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, जो स्पेस कवर करती है और जिसका वेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड डैश। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उनको हम क्या कहते हैं। यू ऑल हैव टू राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अ हार्ड सब्सटेंस इज़ वन दैट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड और कट ईजली। हार्ड सब्सटेंस क्या होते हैं, मजबूत, जिसको ना हम स्क्रैच मार सकते हैं ना उसे आसानी से कट कर सकते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन। डायमंड जो है वो धरती पे सबसे ज़्यादा मजबूत हार्ड सब्सटेंस माना जाता है, और वो है भी। आपको पता है ना, आपने सुना होगा हीरा ही हीरे को काटता है, क्योंकि डायमंड से हार्ड चीज़ आज तक कोई बनी ही नहीं। तो डायमंड को हम चाकू से नहीं काट सकते, ग्लास से नहीं काट सकते, इसलिए डायमंड को डायमंड से ही काट सकते हैं। अ हार्ड सब्सटेंस विल स्क्रैच और कट अ मटेरियल दैट इज सॉफ्टर। और हम डायमंड को या किसी भी हार्ड सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं किसी सॉफ्ट सब्सटेंस को तोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड कैन बी यूज टू कट ग्लास। हम डायमंड को यूज़ कर सकते हैं कि वो ग्लास को कट कर दे, बट ग्लास कैन नॉट इवन स्क्रैच डायमंड। जो ग्लास है वो डायमंड पे एक खरोच भी नहीं ला सकता। हार्ड सब्सटेंसेस आर यूजफुल एज कटिंग टूल्स। जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं कटिंग टूल्स के लिए। सब्सटेंसेस विच कैन बी स्क्रैच्ड और compressed easily आर कॉल्ड सॉफ्ट। और सॉफ्ट क्या होते हैं सब्सटेंसेस, जिनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, है ना। विच इज़ यूज फॉर मेकिंग टैल्कम पाउडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी सॉफ्ट सब्सटेंस। कोई पाउडर है, आप गर्मियों में पाउडर यूज़ करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा वेरी सॉफ्ट सब्सटेंस में काउंट होता है पाउडर, ओके। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है लस्टर। मैंने आपको पीछे भी बताया था, लस्टर का मतलब होता है चमक। If we look around and observe the surfaces of different objects carefully, we notice that surfaces of some objects like steel spoon, coin, doorknob और water taps shine when light falls on them. ये जितनी भी मैंने अभी चीज़ों के नाम लिए वो चमकीली हो जाती हैं, चमकने लग जाती हैं जब उन पर लाइट पड़ती हैं। These materials are said to have a luster and are called lustrous materials. जो चीज़ें चमकती हैं उन्हीं को हम कहते हैं लस्टर, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्टर, और जो सामान चमकता है उसको कहते हैं लस्ट्रस मटेरियल। मेटेलिक सरफेस जनरली शो दिस प्रॉपर्टी। और जो मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये इन सब के पास ये प्रॉपर्टी होती है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी मेनली ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। और इसी चमकने वाली प्रॉपर्टी की वजह से जो गोल्ड है और सिल्वर है वो गहने बनाने के काम भी आता है। However, some metallic surfaces are also observed to lose their shine when they exposed to open air for long duration. कुछ जो मेटेलिक सरफेस होते हैं, जैसे आयरन होता है, उस पर जंग लग जाता है। अगर हम बहुत टाइम तक आयरन को पानी और हवा में रख रहे हैं तो उस पर जंग पड़ जाता है। बट दिस शाइन कैन बी रीगेन्ड बाय रबिंग द सरफेस विथ क्लॉथ और सैंड पेपर। अब अगर ऐसे कुछ होता है, कुछ सामान गंदा हो जाता है, मिट्टी चढ़ जाती है, तो हम इनको साफ़ कर सकते हैं, ये साफ़ हो जाती है। We also find that there are a large number of other objects whose surface does not have a shine or luster. हम अपने आसपास और भी देखते हैं, कई चीज़ें, हमारे कपड़े ही हो गए,
ये नहीं चमकते, है ना। These dull looking materials such as paper, wood, plastic, cotton, rubber, etc., which do not have shine are called non-lustrous material. जिन जिन चीज़ों के मैंने नाम लिए उनमें शाइन नहीं होती, इसलिए इनको कहते हैं नॉन लस्ट्रस मटीरियल्स. Look around and identify more objects whose surface is lustrous or non-lustrous. Next property is roughness and smoothness. You might have experienced that the surface of some material feels smooth on touching. आपका जैसे शीशा होता है, आप उसे टच करते हो तो वो स्मूथ होता है ना. फॉर एग्जाम्पल अ लुकिंग मिरर और थिंग्स मेड ऑफ मेटल आर स्मूथ टू टच. या कोई कड़ा होता है हम जो हाथों में पहनते हैं, चाहे गोल्ड का हो चाहे नॉर्मल हो, वो भी स्मूथ होता है टच करने में. सम अदर मटीरियल्स आर फेल्ट रफ ऑन ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट टचिंग. और कुछ होते हैं मटीरियल्स जो रफ़ होते हैं, हम टच कर, जैसे सड़क हो गई, है ना. हम सड़क को अगर हाथों से टच करके देखें तो रफ़ होती है. और इसमें लिखा नहीं है पर मरकरी एक मेटल होता है, MERCURY. मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड होता है. अदरवाइज जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, टाइट, है ना. पर जो मरकरी है वो लिक्विड होता है. अ पीस ऑफ स्टोन एंड मोस्ट ऑफ द रॉक्स फील रफ ऑन टचिंग. जितने भी पत्थर हैं, रॉक्स है, अगर हम उन्हें टच करते हैं तो वो रफ होते हैं. Thus we can say that the surface of a material could be smooth or rough. इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का सरफेस स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है. डेंसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. फ्लोटिंग मतलब पानी के ऊपर तैरना और सिंकिंग मतलब पानी के अंदर डूब जाना. इफ़ यू ड्रॉप एन आयरन नेल इन वाटर इट विल सिंक. अगर आप कील को, लोहे की कील को पानी के टब में डालोगे तो वो डूब जाएगी. बट अ पीस ऑफ वुड विल फ्लोट ऑन वाटर. पर जो लकड़ी होती है वो नहीं डूबती. इफ़ यू वे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आयरन, वाटर एंड वुड यू विल फाइंड दैट आयरन इज़ द हैवीएस्ट एंड वुड इज़ द लाइटेस्ट. अगर आप तीनों का वेट नापो, आयरन, वाटर और वुड का, आयरन का सबसे ज़्यादा वेट होता है, वुड का सबसे कम होता है. An equal volume of aluminium will be lighter than iron but heavier than water. अगर हम इक्वल वॉल्यूम लें एल्यूमिनियम की भी तो वो आयरन से हल्का होगा पर वाटर से हैवी होगा, इसलिए वो डूब जाएगा. An equal volume of cotton will lighter than water. अगर हम उतनी ही वॉल्यूम कॉटन की लें तो वो पानी से कम हैवी होगी, इसलिए वो ऊपर तैरेगी. इफ़ प्लेस्ड ऑन वैक्स पेपर इन वाटर इट विल फ्लोट. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी. ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अ सब्सटेंस विच इज़ डेंसर देन वाटर विल सिंक इन वाटर. अ सब्सटेंस विच इज़ लेस डेंस देन वाटर विल फ्लोट ऑन वाटर. कोई भी चीज़ जो पानी से ज़्यादा हैवी होगी वो पानी में डूब जाएगी और कोई भी चीज़ जो पानी से कम हैवी होगी वो पानी पे तैरेगी. तो ये लिखा आपका डेंसिटी का फॉर्मूला. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. Matter can be classified on the basis of whether it floats or sinks in water. That is on the basis of whether its density is lesser than or greater than that of water. Human beings have almost the same density as water. जो हम इंसान होते हैं हमारी डेंसिटी ऑलमोस्ट पानी के जितनी होती है, इसलिए हम आराम से फ्लोट भी कर सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं पानी पे विदाउट डूबे. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. So now let us do some more questions. Fifth question is dash is the hardest substance on earth. ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हार्ड है पूरी धरती पर. Sixth question है the dull looking materials like paper, wood which do not have shine are called dash. आपको पता है ना, जो पेपर होता है, वुड होता है, रबड़ होता है, इनके पास शाइन नहीं होती है, चमकते नहीं है. तो ऐसे डल लुकिंग मटेरियल्स को क्या कहते हैं. Seventh question is write the formula of density. Write the answers in your notebook. Density का formula लिखना है. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडक्शन ऑफ हीट.
All cooking utensils, kettle, pressure cooker, etc. are made of metals but their handles are made of either wood or hard plastic. आप देखते होगे जितने भी बर्तन होते हैं किचन में सब स्टील से बने होते हैं, है ना, पर उनका जो हैंडल होता है जहाँ से हम उन्हें पकड़ते हैं वो या तो प्लास्टिक से बना होता है या वुड से बना होता है. वाई आर द हैंडल्स ऑफ दीज थिंग्स मेड ऑफ वुड और हार्ड प्लास्टिक? ऐसा क्यों? अभी हम देखते हैं. On the basis of capacity of heat conduction, substances can be classified as follows. Good conductors of heat. The substances which allow heat to pass through them are called good conductors of heat. Example, metals and graphite. ऐसे मटेरियल्स, ऐसी चीज़ें जो अपने में से हीट को पास होने देती है उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स. और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, the materials which do not allow heat to pass through them are called bad conductors of heat. और bad conductors of heat का एक और नाम होता है insulators. जो सब्सटेंस या कोई भी चीज़ अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता उसको कहते हैं हम इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो अभी हमने पढ़ा जितने भी बर्तन होते हैं उनके हैंडल होते हैं वो वुड या प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं? क्योंकि वुड और प्लास्टिक अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता. इसलिए अगर हमें कोई बर्तन गैस से उतारना है तो हम उसके हैंडल को पकड़ के उतार सकते हैं क्योंकि वो गर्म नहीं हुआ होता. अदरवाइज जो पूरा बर्तन है वो बहुत गर्म होता है ना. एयर इज़ ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर भी बैड कंडक्टर होती है हीट का, मतलब कि एयर इंसुलेटर होती है. ट्रांसपेरेंसी. You can look through glass but not through wood or metal plate. Do you know why? अब ग्लास में तो अपनी शक्ल देख सकते हो पर लकड़ी में नहीं देख सकते. ऐसा क्यों? This is because light can pass through glass but not through wood or metal. क्योंकि जो लाइट होती है वो ग्लास में से पास कर सकती है बट लकड़ी और मेटल में से नहीं कर सकती. The property of substance to allow light to pass through them is called transparency. ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जो अपने अंदर से लाइट को पास होने दे उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी. Substances are classified into 3 groups depending on the amount of light which can pass through them. अब जो सब्सटेंसेस हैं हम उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि उनमें कितनी लाइट पास होती है. पहला है द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. जैसे ग्लास, एक्राइलिक शीट, वाटर एंड एयर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं अच्छे से उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स. वुड, स्टोन, कार्डबोर्ड, मेटल्स एट्सेट्रा आर ओपेक मटेरियल्स. ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते बिल्कुल भी, जैसे दीवार हो गई, इनको हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स. सर्टेन मटेरियल्स अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. अब कुछ मटेरियल्स होते हैं जो अपने में से थोड़ी थोड़ी लाइट पास होने देते हैं, पूरी नहीं होने देते. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ऑयली पेपर और वैक्स्ड पेपर, ग्राउंड ग्लास आर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. जैसे आपका कोई टिश्यू पेपर है उस पर ऑयल लगा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा आर पार दिखता है, तो ये होते हैं हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मैग्नेटिज्म. आई होप सबको पता होगा मैग्नेट क्या होता है ना. ब्रिंग अ मैग्नेट टूवर्ड्स द हीप ऑफ आयरन पिन्स. जो आयरन होती हैं उनकी पिन्स, छोटी छोटी कीलें, उनके पास मैग्नेट ले आओ. व्हाट हैपन्स, क्या होगा? आयरन पिन्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट. जो आयरन की पिन्स हैं वो मैग्नेट के पास आके चिपक जाएंगी, जैसे नीचे हो रहा है. नीचे जो मैग्नेट है यू शेप में उसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट. ओके, देखो ये सारी आसपास पिन्स पड़ी हैं इसकी छोटी छोटी, ये सारी आके मैग्नेट से चिपक रही है. Now bring the magnet near the heap of sawdust. Sawdust आप मिट्टी मान के चलो, मिट्टी के पास लो. What happens? Sawdust आके नहीं चिपकती मैग्नेट को, है ना. The materials which are attracted by a magnet are called magnetic materials.
ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ चिपकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। और ऐसी चीज़ें जो मैग्नेट से जाके नहीं चिपकती उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक स्टिकर्स आप फ्रिज पे लगाते होगे या अलमीरास पे मैग्नेट वाले जो स्टिकर्स होते हैं उनको चिपकाते होगे, है ना। मैग्नेटिक टॉयज़ आर कॉमनली अवेलेबल मार्केट। मैग्नेट के टॉयज़ भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इन इंडस्ट्रीज मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमारे जो फ़ोन्स वगैरह होते हैं इनके अंदर भी कहीं ना कहीं मैग्नेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब फैलना। सबसे पहले आप नीचे पिक्चर में देखो, हमने थोड़ी सी इंक पानी में डाली, धीरे धीरे करके वो इंक पूरे बीकर में फैल गई। इफ़ यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, अगर आप परफ्यूम की बॉटल खोलोगे और स्प्रे करोगे, द स्मेल स्प्रेड्स थ्रू आउट द रूम, पूरे रूम में खुशबू हो जाएगी। वाई डज दैट हैपन? ऐसा क्यों हुआ? परफ्यूम इवेपोरेट्स एंड द वेपर मिक्सेस विद द एयर। क्योंकि जो परफ्यूम है वो इवेपोरेट हो जाता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है। Once that happen, it spreads everywhere in the room along with air. और जब ऐसा होता है तो पूरे रूम में एयर के साथ वो खुशबू मिक्स हो जाती है। The intermixing of one substance with another is called diffusion. किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस से मिक्स होना ही डिफ्यूजन कहलाता है। The intermixing of one substance with another is called diffusion. The perfume vapor mixed with air reaches us due to diffusion. Gases diffuse very fast. जो gases होती हैं वो बहुत जल्दी diffuse हो जाती हैं। Different substance diffuse at different rates. Rates मतलब speed. Examples of diffusion. When we breathe, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना अंदर, oxygen gas diffuses into the blood from the lungs and carbon dioxide gas diffuses from the blood to the lungs. जो हम ऑक्सीजन लेते हैं नोज से या माउथ से ली, लंग्स के पास गई, लंग्स ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ कर देता है, फैला देता है। और हम छोड़ते क्या है, एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो बॉडी पार्ट है वो लंग्स के पास आके डिफ्यूज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी लंग्स बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज फ्रॉम द बॉटल इनटू द एयर। जब आप कोई पेप्सी की बोतल एकदम से खोलते हो उसमें से गैस निकलती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आप खोलते हो तो जो उसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में फैल जाती है। इसलिए कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को ज़्यादा देर खुला मत छोड़ो, उनकी गैस निकल जाएगी, मतलब डिफ्यूज़ हो जाएगी एयर में। थर्ड एग्जाम्पल इज़ व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज़ एडेड टू अ बॉल ऑफ वाटर। जब भी, जैसे नीचे जो एग्जाम्पल दिया है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। It diffuses into water. After some time, all the water become colored. इंक जरा सी 2 ड्रॉप इंक हम अगर पानी में डालेंगे वो धीरे धीरे करके पूरे में फैल जाएगी। So here we have next few more questions. The 8th question is the substance which allow heat to pass through them are called dash. ऐसे मटेरियल, ऐसे substances जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं, हम उनको क्या कहते हैं। 9th question is the intermixing of one substance with another is called dash. किसी भी दो चीज़ों का मिलना क्या होता है। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जो मेटल्स होते हैं आप नीचे जैसे देख सकते हो, हैमर से हमने गोल्ड को बीट किया, मारा, हमने उसे कॉइन में बदल दिया। तो जो मेटल्स हैं हम उन्हें बीट करके, मार मार के पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स विदाउट ब्रेकिंग अप इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। और मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी कि हम उन्हें बीट करें हैमर से और वो पतली शीट्स में चेंज होते रहें बिना टूटे, इसको हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। एंड जो सब्सटेंसेस ऐसे हो जाते हैं, एंड सच सब्सटेंस आर कॉल्ड मेलिएबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी।
ऑल मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आप देख सकते होगे हम गोल्ड की वायर होती है, सिल्वर की वायर होती है, कॉपर की वायर होती है जो मोस्टली घरों पे यूज़ होती है। तो मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी एंड सच मटेरियल्स आर कॉल्ड डक्टाइल। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की, मटेरियल्स की, जिससे हम उन्हें बीट करते हैं इसमें भी हैमर से और पतली पतली वायर्स में चेंज कर देते हैं। मेलिएबिलिटी में क्या किया था, पतली पतली शीट्स में चेंज किया था, एंड डक्टिलिटी में पतली पतली वायर्स में चेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज सॉल्युबिलिटी। You might have observed that if we put some sugar or salt in water contained in a tumbler and stir it well, they disappear in water completely. है ना, आप जब चीनी को पानी में घोलते हो तो वो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाती है, गुम हो जाती है, फिर हमें चीनी नहीं दिखती, हमें सिर्फ पानी दिखता है, होता है ना ऐसा। वी से दैट सॉल्ट एंड शुगर आर सोल्यूबल इन वाटर। जो सॉल्ट है, शुगर है, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वाटर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, और पानी को हम कहते हैं सॉल्वेंट, और शुगर और सॉल्ट को कहते हैं सॉल्यूट। मैंने आपको पहले भी बताई है ये चीज़। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसमें हमने बात की चीनी और पानी की। पानी ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा पानी में हमने कम चीनी घोली है, तो पानी यहाँ पे हमारा होगा सॉल्वेंट, और जो चीनी है वो होगी हमारी सॉल्यूट। और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिलाकर बनाते हैं हमारा सॉल्यूशन। The role of water as a solvent is very important in our life. However, water is not the only solvent used for dissolving other substances. सिर्फ वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ्स में, बट वाटर के अलावा भी बहुत सारे डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ईथर एट्सेट्रा। ओके, द मिक्सचर कंटेनिंग द सोल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड सोल्यूशन। ये मैंने अभी आपको बताया, solvent plus solute is equals to solution. Thus, materials or substances can be classified on the basis of their solubility in water. Metal, stone, wood, sand, etc. are insoluble in water. अभी जिन मैंने चीज़ों का नाम लिया, पत्थर, वुड, ये सब पानी में soluble नहीं होते, है ना। और सॉल्ट, शुगर, लेमन, जूस, ये सारे soluble होते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर स्लाइटली soluble in water. जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी सॉल्यूबल तो होती है पानी में, पर कम होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं होती, दीज आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। नीड फॉर क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, क्या ज़रूरत है ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने की, वाई? इफ़ यू विजिट द लाइब्रेरी ऑफ योर स्कूल, you will find that all the books in the library are arranged according to their objects. होता है ना ऐसा, आप लाइब्रेरी जाओ अपने स्कूल के या कहीं भी, तो वहाँ पे जो बुक्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज रखी होती है। इंग्लिश की बुक इस शेल्फ में, हिंदी की यहाँ अलग अलग, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स आर अरेंज टुगेदर एंड ऑल द बुक्स ऑफ साइंस आर अरेंज्ड एट सम अदर प्लेस। डू यू नो द रीज़न वाई द बुक इन द लाइब्रेरी आर अरेंज सब्जेक्ट वाइज? ऐसा क्यों होता है? This is because it helps you to locate easily the book you need. क्लासिफिकेशन की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। Imagine a situation where all the books in the library are kept together and not arranged subject wise. सोचो ज़रा, अगर आप लाइब्रेरी जाओ, सारी बुक्स मिक्स हो, हिंदी इंग्लिश अलग अलग ना हो, साथ में हो, आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और शायद आप ढूंढ ही ना पाओ बुक्स को जोन सी आपको चाहिए, है ना। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। Where else you will find that various objects have been grouped? Do you see grouping of various utensils, spices, etc. in your kitchen? आप किचन में भी देखते होंगे, चम्मच एक जगह रखते हैं, प्लेट एक जगह रखते हैं, है ना। What about the various thing in the grocery shop? Different items are kept in separate shelf. Example, toothpaste, shampoo, soap, biscuit, egg, pickles, detergent, bread, etc. Arranged in separate shelves. हमने, अगर आप कभी ग्रॉसरी शॉप पे जाओ, किसी छोटी मोटी दुकान पे भी जाओ, वो भी सारी टूथपेस्ट एक साथ रखते हैं, शैम्पू एक साथ रखते हैं, सोप एक साथ, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी बिकॉज इट मेक्स इट कन्वीनियंट टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स and it makes it easier to study the properties of object and observe any pattern in their properties.
If we know the properties of one member of a group, it can give an idea about the properties of other members belonging to the same group. अब आप किसी शॉप पे जाते हो, आपको कोई शैम्पू लेना है या फेस वॉश लेना है. दुकानदार ने शैम्पू एक जगह एक शेल्फ में रखा है और फेस वॉश एक में. बहुत सारे शैम्पू फेस वॉश होंगे जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, पर कुछ होंगे जिनके सुने होंगे. माना आपको पॉन्ड्स का फेस वॉश चाहिए, आप लेने गए. पॉन्ड्स के साथ साथ बहुत सारे फेस वॉश रखे हैं अलग अलग ब्रांड के. आपको कैसे पता चला वो फेस वॉश है? क्योंकि आपको पता है दुकानदार ने उस शेल्फ में जहाँ पे पॉन्ड्स का फेस वॉश है, उस शेल्फ में सारे फेस वॉश ही रखे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो, है ना. तो इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आसानी से चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. So finally here comes the last question of the chapter, question 10th. The property of metals due to which they can be beaten into thin sheets without breaking up is called dash. ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की, मटेरियल्स की, जिसमें हम उनको बीट करते हैं हैमर से और शीट्स में चेंज कर देते हैं और वो टूटते भी नहीं. राइट द आंसर इन योर नोटबुक्स. Yes, finally our chapter is completed. I hope it is very much clear to everyone. If you have any doubt, any queries, you can ask me, and I really hope you have written those answers in your notebooks. Okay? So, thank you all for today. Bye-bye.